सबको सबको विजय वर्मा को सबसे पहले ये जो सिद्धार्थ यादव को उसके बाद है ना? गुलशन सर को सही तमनकर मैम अपने आप को देखने के लिए काम बहुत उत्साहित है तो छोड़ दो उसको। जैमी को सभी को लव इट लव इट। ये जो रिश्ता है ऑफ स्क्रीन भी बड़े छोटे का ही लग रहा है। दिस इज क्वाइट कूल। थैंक यू सो मच। एज यू नो मेरे सवाल जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, अब आपकी बारी है। यू नो द jig guys, it's pretty simple. I will be asking you to, there'll be a mic that will come to you if you raise your hand, and हमारे जितने भी किरदार हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, जरूर उनका नाम पहले लीजिएगा before you go ahead. कुना? Oh, I'm so sorry, ma'am. We have a mic that will come to you, and at that point, of course, you can ask for your question. Kunal, I think you have a mic with you. Please go ahead. Yeah, here's a check. Yeah, hi. Hi, everyone. Right here. Yes, hi. खड़े हो जाओगे तो अच्छा। Sure, of course. Yes. Hi. Hi, everyone. Kunal here from India Forums. First of all, what a banger of a trailer. So, just congratulations on this. Thank you so much. Absolutely. And I especially want to thank whoever is in the music department for giving the kind of soundtrack titled, theme tune. Oh my God, it's probably going to go to the playlist right away. Title track is one of the strongest we have, and Abhay will tell you. Ajay Jayanti has composed it. Achint Thakkar and Parth has supervised the track, and they have collaborated on this. It's a banger, and it's got Nashik Dhol along with jazz elements. It's killer. Oof. Just a second. Yeah, hi. Yeah, so no, that is exactly why. And the sheer feel there was, when you entered, oh my God, it just felt goosebumps and everything. So before dealing further, Vijay, I want to start with you. It is just the perfect timing right now. Two gully boys, two Hamzas, very different sort of Hamzas, one ruling the theaters, one probably definitely set to rule with Matka King. I think there is, just consistent connection, which has now become recurring. तो कुछ लोग coincidence बोल सकते हैं, कुछ लोग connection बोल सकते हैं. I just want to know what is just going on and what is your take on it in general. I think you're referring to Hamza, which Yes, of course. Ranveer Singh and Dhurandhar, and Dhurandhar. I played in Darlings. Correct. It's just a coincidence and an interesting piece of movie trivia now. Yeah. But yeah, Gully Boy was a significant moment in my life. I remember I was down in the dumps when that film happened to me. It saved me, it gave me a career. So I'm very thankful to do that film. And with Ranveer, he was one of the finest co-actors I've worked with. And with Hamza, he's hit it out of the park. So I would just say that when life throws a Hamza at you, make it like a Dhurandhar Hamza and not like a Darlings Hamza. For sure. Thank you so much. Absolutely. And I'll just move further to Sai. Sai, there is one thing which has been another constant. Over the years, women have always tried to get better roles, and now in the past few years, it finally seems to be much more a reality as opposed to just conversations consistently just going on here and there, right? What I want to know from you is, though, there is another conversation that's almost persistent, is the fact that there is always a bifurcation when it comes to what are the kind of actors, right? There are regional actors as they are tagged, there are whatever, there is like so many tags thrown around. I think you are probably the only example that has blurred those lines, considering the kind of amount of projects and the type of projects you've been. I want to know what has changed. What do you think? That are you just fortunate enough that these kind of characters keep coming to you, or is it an actual conscious change that that you see happening, not just for you, for Kritika, all these wonderful actresses out there? Listen, I've worked very hard to be here, and of course, fortune. Yes, people who work hard, उनके साथ fortune तो होता ही है. I'm very happy that you said कि you seem to have blurred the lines. All of us are trying to push this envelope, and I think language should not define your existence. मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा है, एक्टर है, तो उसको बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है, और अब ज़माना बदल चुका है. सो आई थिंक जहाँ जितने सारे मीडिया दोस्त हमारे बैठे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि recognize our work as an actor, not geographic specifics, yeah, don't box us, and everybody, for that matter, इसमें भरत सर भी है, गिरीश सर है, सिद्धार्थ है.
So I think all of us are trying to push the envelope, and I'm very happy. I really like people who rise and take their mates along, and I think that's what Nagraj sir has done here, and we are deeply thankful to him. And obviously all the producers, because this is a fun character. I've had a lovely time playing Barkha, and thank you for your question. So was it difficult to recreate 1960s, and what was the most challenging part for you? Well, I mean, when you're doing any period piece, of course, you have to be really specific to the time. And I mean, but that detailing, of course, Nagraj ji has done so beautifully along with his entire team. I think he was very clear from the start that he wanted this to feel authentic, to feel real. And I think the effort that he's put in to make sure that that happens with the entire crew was wonderful. So all the credit would go to him for that. विजय, आपसे मेरा एक सवाल है. आपका जो कैरेक्टर जो आप प्ले कर रहे हैं, क्या ये किसी रियल लाइफ मटका किंग से इंस्पायर है? I mean, बहुत सारे लोग उस ज़माने में इस खेल को खेलते थे और कुछ लोग चलाते थे. तो इन सब की कहानियों को इकट्ठा किया है. यहाँ पर आशीष आर्यन यहाँ पर है नहीं. वो 10 साल से इस कहानी को चेस कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल से उन्होंने खेला भी है थोड़ा बहुत. वो रेस कोर्स और मटका के ठेकों पे जाके उन्होंने इसको 10 साल से स्टडी किया है और अपने जितने भी रिसर्च है उसको एक कहानी का रूप दिया है अभय के साथ मिलके, और जिसको नागराज सर और अभय ने मिलके हम सबको समझाया है. और इनके साथ काम करना मेरा एक सपना था. इनके साथ इनकी फिल्मों में जब देखता हूँ मुझे लगता था कि मैं ताजुब में था कि मुझे क्यों लिया, क्योंकि इनको तो एक्टर की ज़रूरत ही नहीं है. इनकी पहली फिल्म फैंड्री में नॉन एक्टर्स थे. सैराट में 2 लीड लॉन्च किए जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी. झुंड में अपार्ट फ्रॉम मिस्टर बच्चन द एंटायर कास्ट हैज बीन जस्ट लाइक रैंक न्यू कमर्स. सो आई वाज लाइक नॉन एक्टर्स वर्क सो वेल इन हिज मूवीज दैट आई थॉट आई विल बी एक्सपोज्ड कि मेरी एक्टिंग पकड़ी जाएगी. तो आई हैड टू अनलर्न अ लॉट टू जस्ट work with this gentleman here. He's one of the finest we have. And I can't wait to kind of do more with him. Sir, tik-tak kiya to wapas. Thank you for your question. The mic is going Hello. around. Hi, Kritika. Jaya this side. Would you be able to stand up? Firstly, congratulations for your new chapter. So your character brings, different kind of energy into the world of Matka King. So really want to ask, how was it to you work in that space, and how do you like it to explore that character? Like I was saying before, कि ये जो power और लोगों का रिश्ता है ना वो बहुत amazing होता है. And I have had the opportunity to be close to power in another project with Prime Video before. This was very interesting because यहाँ पे जो है उसकी journey और उसकी ambition अलग है उससे and मेरे पिछले character से. तो I thought this was a new study in that. And it's really exciting. The entire show is, of course, it's thrilling क्योंकि जब पैसों की बात आती है तो सब कुछ thrilling हो ही जाता है. And then to see, Brij Bhatti's world from this lens is also, I think, essential to this story and the Bombay of 60s and 70s. नागराज जी, मेरा सवाल आपसे है. भावना शर्मा, नव भारत. Would you be able to stand, ma'am? There she is, Yeah. right here. हाँ. Thank you. नागराज जी, जो हमारे एक्स कमिश्नर हैं राकेश मारिया जी, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि जो हमारी मुंबई पुलिस है, जो जिनको बेस्ट माना जाता है, वर्ल्ड में सेकंड बेस्ट माना जाता है, उसके लिए उन्होंने कहा था कि एक तरफ जहां पर रतन खत्री था तो दूसरी तरफ एक्स पुलिस कमिश्नर रिबेलो जी भी थे. तो आप क्या, जैसे ये जो फिल्म है वो मटका किंग पर है, लेकिन पुलिस भी उस समय बहुत स्ट्रांग थी और उनका सम्मान पुलिस महकमे में बहुत ज्यादा है. तो क्या हम अपने पुलिस कमिश्नर को इसमें कमजोर देखेंगे या वो भी उतने ही दमदार होंगे जितना मटका किंग था? देखिए, किसी भी कहानी में कोई कमज़ोर और बहुत शक्तिशाली होता नहीं है. कहानी किसके नज़रिए से आप कहते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है. आप किसी एक बंदे की कहानी कहते हो तो दूसरा एज ए किरदार वीक ही हो जाता है. तो आप किस दिशा में आपका सवाल है वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये कहानी है एक मटका किंग की
तो इसमें यही पावरफुल है। और हम एक हीरो की कहानी देखते हैं, जब कृष्ण की कहानी देखते हैं तो कृष्ण की कहानी देखते हैं, जब हम सुदामा की कहानी देखते हैं तो सुदामा की कहानी देखते हैं। और सुदामा की कहानी में कृष्ण साइड कैरेक्टर होते हैं। अगर सुदामा जो कृष्ण के मित्र थे महाभारत में, तो जो किरदार है वो ही हीरो होता है, बाकी लोग आते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहानी देखते नहीं। तो यहाँ पे मटका किंग ही हमारे हीरो हैं और वही शक्तिशाली है, और दूसरे ये एक बंदे हैं जो शक्तिशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबके सामने मुझे मटका किंग कहा। मुझे नजर आया शक्ति का संचलन इधर। मैम आपका सवाल बहुत बढ़िया था, लेकिन यहाँ जो हुआ वो तो और भी बढ़िया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन एंड what an honor to actually be speaking to the commissioner at that point. Salute to your journalism and your career. Thank you so much for that. We're going to take this to the next person who's got a mic. Hi. इनकी जो कहानी है, it's being outsider coming, making his own journey, quite similar to your personal journey on this industry. So how do you relate to this character? I think I touched upon that Yeah. point in the previous one, but apart from just a man who had nothing but a dream and a desire to grow bigger and do it in his way, with his conviction, with his honesty, and with his dedication, and to keep people together and carry an element of imandari. I think these are the commons, but baki kuch nahi hai. Thank you, sir. We have just time enough for one last question, and that the mic is already रवि जी के साथ है. तो रवि जी बोलिए ना, लेकिन आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि आपके पीछे कैमरा है. रवि जी बोलिए. बिल्कुल. मेरा सवाल नागराज जी से है, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. उनकी सारी फिल्में मैं देखता हूँ, चाहे फैंड्री हो, सायराट हो, पिस्टुलिया जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म, शॉर्ट फिल्म थी आपकी. आप एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिसे एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग फिल्म मेकर कहा जा सकता है, जिसका विजन बहुत ओरिजिनल होता है और जो हमेशा से सोशली कॉन्शियस सिनेमा पर बहुत ध्यान देता रहा है. मैं जानना चाहूँगा कि वो एक क्या बात थी कि आपने 60s के दौर में जाना पसंद किया, रतन खत्री जैसे जो एक जिस तरह का शख्सियत था उस पर ये एक सीरीज बनाने के बारे में सोचा, और किस तरह से आपने अपनी ओरिजिनल वॉइस को रखा है इसमें जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो. पहली बात ये किसी पे आधारित है नहीं सीधे, और 60s में जाना या किसी भी समय में जाना, खाशावा उसके पहले की कहानी है. मैं जो खाशावा मराठी में कर रहा हूँ तो ये लगभग 30 की कहानी है, 30 से लेके 80 तक की. तो वो तो मैंने पहले भी कहा था कि जब जो किरदार जिस समय का है उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है. और मैं ये माध्यम पहली बार कर रहा हूँ, मुझे भी करके देखना था. मैं सीख रहा हूँ और ये सारे लोगों के साथ मैं ये माध्यम में सीखा. मुझे कितना अच्छा आता है नहीं आता है आप देख के बताइएगा मुझे लेकिन फिल्में बनाना अच्छा लगता है और वो तो मैं बना ही रहा हूँ. और मैं अपने तबीयत से जो पसंद आता है वो बनाता हूँ. और अश्विनी जी जो मेरी दोस्त हैं, ये बहुत दिनों से मुझे कह रही थी कि मुझे फिल्म तो तू कर ही रहा है लेकिन कभी वेब सीरीज़ भी करके देखना चाहिए. आशीष जो है, आशीष आर्यन, ये बहुत सालों से, लगभग 6 साल हो गए मैं आशीष को जानता हूँ, मैं दोस्त हूँ. और ये कहानी वो बार बार मुझे कह रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. और देखिए कि मैं सोशल सब कुछ होता है, मैं ये भी मानता हूँ. हालांकि मेरा चॉइस मैं रखता हूँ, लेकिन हर एक चीज़ सोशल है. और जब ये दुनिया के बारे में मुझे पता चला मटका और ये सब, तो मैं भी बचपन से मटका को देखते आया हूँ. मैं भी बचपन में मटका खेला हूँ और तब मैं मटका की जो कहते हैं एंड यूज़र था, उसकी अंदरूनी दुनिया में समझता नहीं था. और जब मैं आशीष से समझने लगा, फिर बाद में मैं खुद जाके बहुत लोगों से मिला, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और मुझे लगा कि ऐसी भी एक कहानी कह के देखनी चाहिए एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर. एक अलग कहानी, हालांकि जो मैं आमतौर पे शायद मैं नहीं करता था, वैसी कहानी मुझे भी बोल के देखनी चाहिए. एक अलग माध्यम है, एक बड़ा माध्यम है सीरीज़ का. और ये सारे लोगों के, अमेज़ॉन, रॉय कपूर फिल्म्स के सारे लोग, अभय, आशीष, इन सब के साथ, अश्विनी के साथ मैं ये बनाया. और विजय ने और ये सारे लोगों ने उसको मेरी मदद की. गुलशन जी खास, मैं तो बचपन से इनको देखते आया हूँ. नहीं, सही बोल रहा हूँ जब मैंने गुलशन जी को इसी अमेज़ॉन की पार्टी में देखा था, अपना जब अनाउंसमेंट हुआ था तब कास्टिंग नहीं हुआ था,
और सायरा जी, हम सब लोग तब कास्टिंग के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो सर मेरे सामने से गुजर गए, तो मुझे लगा यार गुलशन जी, तो मुझे मिलना था, लेकिन अश्विनी जी उनको जानती हैं, तो मैंने अश्विनी जी को कहा, अश्विनी जी बोला सर को पूछ सकते हैं, मैंने पूछते हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा कि जिनको बचपन से देखते आया हूँ, जो अपने मन को भाता है वही करते हैं, और उन्होंने हमारे साथ भी ये काम किया, और सारे लोग, मैं सही हो, सिद्धार्थ हो, भूपेंद्र हो, कृतिका, सारे लोगों के साथ, और थैंक यू कि एक नया माध्यम, निखिल और सायरा और सारी स्मृति जी, सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक नया माध्यम मुझे सीखने को मिला और करने को मिला। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं 2 लाइनें ऐड करना चाहता हूँ। 2 लाइनें, मैं thought is of 2 lines, but just want to add to this. You know, Matka King is a story, as I said lightly when he was showing different cards. It has every kind of card. It has every kind of feeling. When you watch Matka King, it's entertaining as well. There's crime, there's danger. इतना आसान नहीं है मटका किंग या कोई भी किंग बन जाना है, किसी भी फील्ड में राइज कर जाना. देयर आर पीपल हु किल यू, एंड ऑल्सो देयर इज फैमिली इमोशन, दिस यू नो कॉन्फ्लिक्ट इन योर ओन माइंड कि मैं क्या करने आया था, क्या कर रहा हूं मैं. देयर आर वेरियस wonderful elements that would entertain you, that would get you thinking, and it's set in a very interesting world. इंटरेस्टिंग वर्ड इतना फैसिनेटिंग है. मैं आपको तीन चार पिछले दिनों की कहानी बात बताता हूँ. मैं ओए बोल नहीं बे, ताली बजाना सिर्फ. तो विनोद, तेरी हिम्मत. तो मैं परसों आई डिनर विद शत्रुघ्न सिन्हा जी, राकेश रोशन जी एंड शशि रंजन, अनु रंजन जो ITA की वो हैं. तो अक्सर जब कोई टैलेंट मिलता है, यार दोस्त से ही पूछते हैं कि क्या कर रहे भाई नया. तो मैंने कहा कि 17 अप्रैल को अमेजोन पे मटका किंग आ रही है. सबकी अटेंशन इस टाइटल पे थी, उस वर्ड पे थी. अगला सवाल था कि डायरेक्टर कौन है. मैंने कहा नागराज मंजुले. मैंने इनकी फिल्म का नाम बताया शरारत, ऐसा कुछ करके. तो अनु रंजन ने कहा शरारत नहीं, शहरियात, शहरात. तो सभी इनके बारे में इतनी अच्छी तरह से जानते थे. प्रोड्यूसर, मैं दूसरे प्रोड्यूसर से माफी मांगूंगा, मैंने कहा सिद्धार्थ राय कपूर. उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ऑलवेज मेक्स वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट. इस प्रकार का रिएक्शन उस टाइटल से आया, मटका किंग से, जिसके अंदर जो मैंने कहा जो मेन मुद्दा था, वो मल्टीपल कलर्स वाली स्टोरी छुपी हुई है. ना सिर्फ ये गैम्बलिंग के ऊपर नहीं है. गैम्बलिंग तो एक ऐसा ही कलर है. यही इसी हॉल में यहाँ सामने मैं और अक्षय कुमार बैठे हुए थे. 3 दिन पहले की बात है, अवार्ड फंक्शन था. ऑब्वियसली अक्षय मेरा दोस्त है, भाई है. पूरा क्या नया, मैंने बोला यार वो अमेजोन की सीरीज आ रही है मटका किंग. There was curiosity, this conversation. I had the similar conversation with Shahrukh, I had similar conversation with Varun Dhawan and various others. The title takes you to a very fascinating world. आपके सामने वो 60s का wonderful world सामने आ जाता है. और उस world को अगर खूबसूरती से, with multiple emotions and entertainment and everything, and danger and fight and all that, if you present it correctly, that is what I would say is the tremendous strength of this film. Thank you very much. Well, honestly, there couldn't have been a better end to this, but thank you, Gigi, for taking that for me. Up here, and there will be photos. Can I please request एक मटका किंग की एक रिक्वेस्ट है. Do you have the title track at the console? सर बजा देंगे क्या? Thank you. थैंक्स. फोटो तो होगा ही ना. आप ही बताइए कैसे खड़े रहना है सर, बोलिए. सही है, सब ठीक, ओके.
And now, of course, there will be solos, and our dear friend Shantanu here will help you with those photos. Starting with Vijay Verma, please. Thank you. सर आप वो गाना बजा रहे हैं क्या हमारे लिए? नहीं है? अरे यार. Cards, playing cards. There's some right here. Shall I give you some? Oh, that was cool. Yeah, baby. Thank you. Woo! That is Vijay Verma, ladies and gentlemen. Siddharth Zado. Absolutely love the Kolhapuris. And now, Vijay Verma and Gulshan Grover. Thank you, Mr. Gulshan Grover. Bhupender. Three, two, one, go. Hey. Woo. क्या बात है? मटका है मटका. All right, Sai, the wonderful Sai Tamarkar. खूप गोड दिसते. Vijay. पूरी दुनिया एक तरफ एंड विजय वर्मा इन धोती एक तरफ. He's loving it, huh? Kritika. Nice, nice, nice. And solo photo for Kritika Kamra, please. Don't go, yeah. Okay, go. Okay, go. Thank you. Yeah, you and I, no? Come, we'll do a photo. We'll do it backstage. Yeah. Okay, I'm coming. I'm coming. Siddharth Roy Kapoor, please, on stage. Thank you.
Once again, don't forget 7